ہلو السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال۔ دوستو دیکھو، یہ ایک میری بہن ہے، اس نے ایک ویڈیو بنایا ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھو پہلے، اس کے بعد میں ہم لوگ بات کریں گے۔ السلام کو کوہ طور کی پہاڑی پر جب میں یہ سٹیٹمنٹ سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کیا یہ ممکن بھی ہے؟ پھر ہاں دماغ میں آتا ہے کہ وہ نبی تھے تو ہاں ممکن ہو سکتا ہے، بٹ آئی وانٹ اے ویری سالڈ پروف۔ اور آج ایک مولوی صاحب اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کے ہمیں داستاں سنائیں گے کہ کیسے اللہ نے بات کری، کیا بولا گیا ہوگا۔ سوچ کر کے بھی ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کیا سننے والے ہیں۔ کنگریچولیشنز، آپ نے ایک بہت ہی گریٹ ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ ہائے، ہلو، نمستے جی، ست شری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور فی الحال رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں یہ ویڈیو دیکھنا از ایکسٹریملی بلسفل۔ خیر، یہ تو کبھی بھی دیکھو، سال بھر میں جس وقت آپ کو اتنی زیادہ بہترین نالج اینڈ اوبویسلی میریکل آف اللہ سننے کو مل جائے، اس سے بہتر وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹرسٹ می، ایمان والے مومنوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ So let's step forward into the best time of our lives and experience اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ خیر، یہ بات بھی سچی ہے کہ God Almighty is always present with us، کیونکہ وہ کریٹر ہیں، انہیں اپنی بہت چنتا ہے، بہت خیال ہے، اور وہ ہمیشہ ہم کو اپنے حفظ و امن میں رکھتے ہیں۔ اس احاطہ میں تین اہم چیزیں ہیں۔ وہ درخت جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تھی، اور اس درخت کے اندر سے آواز آئی، موسیٰ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ۔ 3500 سال گزر چکے ہیں، وہ درخت الحمدللہ یوں ہی ہرا بھرا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا لکھا ہوا خط یہاں موجود ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی لیا تھا۔ اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کے اوپر قیام کیا تھا۔ السلام علیکم، میں اس وقت ہوں موجود مصر میں، اور یہ جو میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سینٹ کاترین کا چرچ ہے۔ اس کے اندر مسجد بھی ہے۔ علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے خط لکھ دیجئے کہ جس سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا لکھا ہوا خط یہاں موجود ہے، اور ایک وہ درخت یہاں موجود ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی، اور اس درخت سے روشنی آ رہی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ درخت بھی 3500 سالوں سے ایسے ہی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ المقدسة التي رآها سيدنا موسى كنارا داخل الدير، وكذلك الكنيسة التي سميت باسم القديسة كاترين أيضا داخل الدير، وكذلك المسجد داخل الدير. فهيا لنلحق، لأن الدير سوف يغلق بابه الساعة 11:10 بعد نصف ساعة، حتى نتجول داخله لنرى كل الأشياء. فبداخله مكتبة ترون فيها. یہ جو آپ احاطہ دیکھ رہے ہیں، اس احاطہ میں تین اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ درخت جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تھی اور اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے، تو اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، آواز سنائی دے رہی ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو وہ درخت جس پہ اللہ رب العزت کا نور ہی نور تھا، روشنی چمک رہی تھی، اس درخت کے اندر سے آواز آئی، موسیٰ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ۔ اے موسیٰ، میں اللہ بول رہا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ میری عبادت کریں اور میرے یاد کے لیے آپ نماز کو قائم کریں۔ وہ درخت آپ دیکھیں گے 3500 سال گزر چکے ہیں، 3500 سال گزر چکے ہیں، وہ درخت الحمدللہ یوں ہی ہرا بھرا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک مسجد ہے، وہ 1000 سال پہلے المعز لدین اللہ جو مملوک بادشاہوں میں سے ہوا ہے، وہ اس بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔
तो मुसलमानों के हवाले से मस्जिद यहाँ है, यहूदियों के हवाले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो दरख्त है, और सेंट कातरीन जो इस्कंदरिया में रहा करती थी, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया था, उन पर ईमान लाई थी, तो वहाँ के रोमियों ने उन पर जुल्म ढाया, तो इस्कंदरिया से वो चल के यहाँ आई और यहीं उनका विसाल हुआ। उनकी याद में एक गिरजाघर बना दिया गया है, उन्हीं के नाम से सेंट कातरीन यहाँ मौजूद है। अब खास बात जो शेख अहमद ने बतलाई है वो ये है कि यहाँ के लोगों ने मदीने मुनव्वरा पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खत लिखवा लिया था, हमारी हिफाजत के लिए एक खत लिख दीजिए ताकि उस इलाके में हम महफूज रहें। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है। आपको रास्ते में बताया गया था कि जिस जमाने में इजराइल और मिस्र की जंग हुई थी, उस जमाने में मिस्र की मुस्लिम फौज ने इसकी हिफाजत की थी। पूरी दुनिया में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, मगर मुसलमान इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नबी का दिया हुआ अहदनामा यहाँ मौजूद है, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो तीनों बातें समझ में आ गई। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा इस लाठी को फेंक दो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर उस लाठी को फेंका था तो वो लाठी सांप बन गई थी। फिर अल्लाह ने फरमाया था कि वज़मुम यदका इला जनाहिक, ऐ मूसा आप अपना हाथ अपनी बगल में रखिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ जब अपनी बगल में रखा तो तखरुजु बैज़ा मिन गैरि सू, बगैर किसी बीमारी के वो चमक दमक रहा था, इस हाल में आपका हाथ अंदर से निकला। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये दो निशानियां हैं, ये आसा लेकर और ये रोशन हाथ जो आपका बगल में रखने के बाद निकलता है, इन दो निशानियों को लेकर के आप फिरौन के पास जाइए। उसने बड़ी सरकशी बर्पा कर रखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआ मांगी थी इसी मकाम पर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरे काम को आसान कर दीजिए, मेरी ज़बान में जो गिरह लगी है उसे भी खोल दीजिए, और मेरा एक मददगार मेरे अहल में से मेरे भाई हारून को बना दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इन तमाम दुआओं को कबूल फरमाया। हज़रत हारून उस वक्त मिस्र में थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ अकेले थे। जब यहाँ से पहुँचे हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके भाई से इस हाल में मिलवाया कि हज़रत हारून को अल्लाह ने नबूवत अता कर दी थी। उनके भाई ने नबी की हैसियत से उनका इस्तकबाल किया। फिर उन दोनों ने, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों फ़िरौन के पास जाते हैं। फिर वहाँ जो कुछ वाक़या पेश आया वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये दरख्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अंग्रेज़ी में इसको बर्निंग बुश कहते हैं और अरबी में ये शजर है ही। इस पर दो चौड़े मीनार नज़र आ रहे हैं। वो सामने वाला जो मीनार है वो उस मस्जिद का है जो अब से तकरीबन 1000 साल पहले बादशाह अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह, जो फातमी बादशाह हुआ करते थे, फातमियों में से अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह बादशाह ने 1000 साल पहले मस्जिद बनवाई थी और उसका ये मीनार है। और ये जो आप मीनार देख रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल ये चर्च का मीनार है। सेंट कातरीन का जो चर्च है आगे देखेंगे आप, ये उसका मीनार है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से आते हैं और मदियन आ जाते हैं, और इस मकाम के ऊपर जो दूसरी तस्वीर है, ये मदियन में वो कुआं है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां अपने बकरियों को पानी पिला रही थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद उन्होंने उस बड़े से पत्थर को हटाया और मूसा अलैहिस्सलाम की बेटियों को पानी, उनकी बकरियों को ताज़ा पानी पिलवाया। ये कुएं का वाक़या है ये। उसके बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी तस्वीर दिखाई गई है। उसके बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तवज्जो दीजिएगा, ये बकरियां हैं मूसा अलैहिस्सलाम चरा रहे हैं, और यहाँ पर वो बर्निंग बुश आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आग सी है आग, हालांकि ये दरख्त है। जो दरख्त आपने वहां देखा है उसकी अक्कासी यहाँ पर की गई है। इस दरख्त के अंदर से रोशनी बहुत ज्यादा नमूदार हुई थी, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को कह के आए थे कि तुम यहीं रहो, हम आग लेकर के आते हैं। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम चप्पलें उतार रहे हैं यहाँ पर, तस्वीर के जरिए समझाया है। अल्लाह की आवाज आई थी फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी चप्पलें यहाँ पे उतारी और आगे बढ़े तो यहाँ लेने आए थे आग, और अल्लाह ने क्या दे दी? नबूवत। आग लेने आए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत से सरफराज किया। वो वाक़या जो मैंने आपको वहाँ सुनाया है वो दरख्त वाला, वो इससे आप समझिए। फिर यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं फिरौन के मद्दे मुकाबिल।
ठीक है, मुकाबला होता है। ये पूरा तस्वीर का दरिया से। अब इसके बाद आप जरा कुआं देखिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए मुझे। Come from under the ground here which باللغة العربية يا حبيبي نعم. النبي موسى هنا أتى من البير بالماء. शेख फरमा रहे हैं कि ये वो कुआं है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। ये समझें कि दो कुएं अलग अलग हैं। एक वो कुआं है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की बकरियों को पानी पिलाया था, वो अलग है, वो तो मदियन में है। ये कुआं भी ऐसा है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। आप यहाँ तशरीफ लाए थे इसी दरख्त के पास, नबी बन गए, तो यहाँ पर एक कुआं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ से इस कुएं से पानी हासिल किया था। इसकी नौइयत अलग है, उस कुएं की नौइयत अलग है। 30 रातें गुजारने के लिए तन्हाई में अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया है, और पूरी की पूरी कौम बनो इसराइल अपने बड़े भाई हजरत हारून के हवाले कर दी कि आप इनकी इस्लाह करते रहें, इनकी निगरानी करते रहें, इनको दीन समझाते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून के हवाले करके पूरी कौम बनो इसराइल उनको छोड़ के आप इस पहाड़ के ऊपर आ गए। कितनी रातों का वादा था? ववाअदना मूसा 30 लैला, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ जब तशरीफ लाए और 30 रातें पूरी होने वाली ही थी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ये आया कि ये मूसा 10 रातें तुम्हें और मजीद गुजारनी है। 30 रातों का वादा वहां से करके आए, यहाँ 10 रातों का इजाफा अल्लाह ने और कर दिया। किसी शख्स को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, तन्हाई मतलूब थी, तो कोई शख्स वहां से आकर हजरत मूसा से पूछ भी नहीं सकता था आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। 10 रातों का इजाफा हुआ तो 31वें दिन हजरत मूसा की तलाश जारी हो गई। बनो इसराइल ने कहा कि वो कहाँ चले गए? कहा कि उनका रब उन्हें मिला नहीं, गायब हो गया उनका रब। क्या करना है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब नहीं पहुंचे वक्त पर वहां, तो बनो इसराइल 3 तबकों में तकसीम हो गए। ये है सुनने की बात। पूरे बनो इसराइल जो 6 लाख इंसान थे वो 3 तबकों में तकसीम हो गए। एक तबका वो था जिसने ये कहा कि मूसा को उनका रब मिला नहीं, मूसा गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए। उन्हीं में एक सामरी जादूगर था, सामरी जादूगर। उसने तमाम बनो इसराइल से कहा कि तुम्हारे पास जितना सोना चांदी है सब लाओ। सोना चांदी जमा करके उसने एक बछड़ा बनाया और उसको ऐसे मकाम पर रखा कि बड़ी तेजी के साथ में उसमें से एयर पास हो रही थी। तो जसदल लहू खुआर, उसके अंदर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कि कोई बछड़ा बोल रहा हो। तो उस तबके ने कहा कि यही हमारा माबूद है। मूसा जिस माबूद की तलाश में गए हैं वो तो उनको मिला नहीं, यही हमारा माबूद है और हम इसी की पूजा करनी शुरू कर देंगे। बनो इसराइल के 3 तबकों में से एक तबके ने उस बछड़े को अपना माबूद मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। ये काफिर हो गया तबका। दूसरा तबका वो था जिसने ये कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम भटके नहीं हैं, अपने रब से मुलाकात के लिए गए हैं, वो जरूर हमारे पास वापस आएंगे और हिदायत लेके वापस आएंगे। और जो तीसरा तबका था उसने कहा कि न हम इधर की मानेंगे न उधर की मानेंगे, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, न इधर के रहेंगे न उधर के, जो होगा वक्त बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे और नहीं आएंगे तो इनके साथ हो जाएंगे। ये 3 तबके हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जब 40 रातें यहाँ मुकम्मल कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई तौरात उनको अता की। अगर आप पूरी तौरात पढ़ना चाहते हैं तो कुरान मजीद में पूरी तौरात मौजूद है। 15वां पारा सूरे बनी इसराइल, रुकू नंबर 3 से मजमून शुरू होता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। यहां से लेकर और अगले रुकू तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात का सारा मजमून कुरान में जमा कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियां लेकर के आए और कौम बनु इसराइल को देखा कि उसका ये हाल हो गया है कि बछड़े को पूज रहे हैं। कोई और तबके में तकसीम हो गया। एक तबका ऐसा था जो आपके दीन पर कायम था, जो आपको मानने वाला था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। वो तख्तियां आपने एक साइड में रखी और अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली मारे गुस्से के कि मेरी अदम मौजूदगी में ये सब कुछ क्या करा डाला। तो हजरत हारून ने कहा कि ये इतने बिगड़े हुए लोग हैं, अगर इनको मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करता तो मेरे भाई ये मुझे मार डालते।
तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म ये आया कि जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद माना है वो सब खुद को कत्ल कर लें। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, मार डालो अपने आप को, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए, अल्लाह के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ के ऊपर क़याम किया था। ये बहुत छोटा सा कुब्बा आपको नज़र आ रहा है, अच्छा खासा बड़ा कमरा है ये कमरा बाद में बना दिया यहूदियों ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो खुले आसमान के नीचे पहाड़ के ऊपर 40 रातें गुजारी थी, लेकिन आपकी याद में वहाँ एक कमरा बना दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर 40 रातें गुजारी थी। आप जरा इस पहाड़ का तस्वीर में देखा आपने, ये वही कोहितूर पहाड़ था जिस पहाड़ पे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के लिए गए थे। 30 दिन के लिए गए थे और उनको वहाँ 40 दिन लग गए थे। और उसके बाद में 40 दिन में जो उनकी कौम थी, 6 लाख लोग थे, वो उसमें से कुछ लोग उन्होंने अपना ईमान बदल लिया था। और उसमें एक जादूगर था जिसका नाम सामरी था, उसने कुछ लोग इकट्ठा किया और सोने चांदी इकट्ठा की। उसने एक बुत बनाया था, एक बछड़ा बनाया था जिसका जिक्र कुरान में भी है, और कुछ लोग उसकी पूजा करने लगे थे। उसके मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम जो भी उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के लिए उस पहाड़ पर गए थे। और उसके बाद में उनको वहाँ 40 दिन लग गए थे। उन 10 दिनों में उनकी जो कौम थी, कुछ आदमी थे, लाखों आदमी, वो उन्होंने अपना ईमान बदल लिया था। और मैं आपको ले चलता हूँ उसी बछड़े पर जो उस वक्त के जादूगर सामरी ने बनाया था। चलिए मेरे साथ कंटिन्यू मिस्र के सफ़र पर। That's it, it's over. Thank you so much भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी जिन्होंने इस ब्यूटीफुल ब्लिसफुल वीडियो को एक्सपीरियंस किया। और पहले भी मुझे एक वीडियो के ज़रिए पता चला था कि बनी इज़राइल जो कौम थी, जो ज्यूज़ थे, वो एक पॉइंट पे आकर के बछड़े का बुत बना करके, उसकी मूर्ति बना करके पूजा करने लग गए थे। इसे तो बुत परस्ती कहा जाता है और इसे इस्लाम के अंदर शिर्क माना जाता है, क्योंकि जितने भी मोमिन हैं ईमान वाले, वो फॉर्मलेस गॉड अल्लाह सुब्हान व ताला की इबादत करते हैं। बट लॉजिकली एंड साइंटिफिकली ऑल्सो आप सोच के देखिए कि कोई आपने पुतला बना दिया अपने हाथों से बछड़े का और आप उसकी इबादत करने लग गए, उसके नाम से नमाज़ें पढ़ने लग गए, जबकि उसे तो आपने क्रिएट किया। वो आपका क्रिएटर थोड़ी है, आपका क्रिएटर तो अल्लाह सुब्हान व ताला है, भगवान है, इस सृष्टि के रचयिता हैं, गॉड ऑलमाइटी हैं। सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर यकीन मानिए जब भी एक इंसान दुआ करता है तो पहुंचती उसी एक सुप्रीम पावर के पास है। और कुरान शरीफ में डायरेक्ट लिख रखा है कि हमको अलग अलग कम्युनिटीज़ में, कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में पैदा कर दिया है अल्लाह ने, पर हम सब एक ही उम्मत हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। जस्ट बिलीव इन द वननेस ऑफ दिस यूनिवर्स। किसी भी इंसान को आप देखेंगे तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आपको एक प्यार, एक एकता नज़र आएगी कि हाँ हम सब एक ही तो हैं। अभी तो कहा जाता है कि ये जो फिजिकल बॉडी है ये एक बंधन है, इट्स अ बॉन्डेज, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी पावर है दैट रिजाइड्स इन द रूह, द आत्मा। आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं स्टार्ट हो जाती हूँ तो काफ़ी बार भावुक होकर के बोलती चली जाती हूँ। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है साथ में वक्त बिताना, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल इतनी। हेलो, तो देखा आप लोगों ने कि इनका बोलने का तरीका कितना अच्छा है ये बहन का, और दूसरा समझाने का तरीका, रिएक्शन देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से मुझे इनका वीडियो पे रिएक्शन मतलब देने की कोशिश कर रहा था मैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।